Assalamu alaikum students. This is Mumtaza Tabassum, teacher, Government Boys High School, Mandigaon. As we all know that we are discussing the chapter 3 questions, class 7th, subject General English. तो इसमें से थोड़ा सा हमने पढ़ा है, तो थोड़ा सा मैं रिकैप्चुलेट करूँगी कि जो बादशाह है उसके दिमाग में एक सोच आया कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नाकामयाब नहीं हो जाऊँगा अगर मुझे 3 चीज़ों के बारे में पता चलेगा. पहला कि सबसे सही वक्त किसी चीज़ को करने के लिए क्या है. दूसरा, मुझे किन लोगों को सुनना चाहिए, किन को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देनी चाहिए. और तीसरा, मेरे लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी क्या है. तो बहुत से जो मैसेंजर्स थे इसके दरबार में आए, तो बहुत से लोग इसके दरबार में आए, उन्होंने हर एक ने अपनी अपनी राय दी. तो अब हम कंटिन्यू करते हैं कि आगे क्या होता है. But then others said there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said priests, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. To the third question, some said science, others chose fighting, and yet others religious worship. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so that the king put ordinary clothes. Before he reached the hermit's house, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. The king went up to the hermit and said, "I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right things at the right time? Who are the people I need most, and what affairs are the most important?" The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. "You are tired," said the king. "Let me take the spade and work in your place." "Thanks," said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. But then others said there were things which could be urgent. तो कुछ लोगों ने इसको कहा, लेकिन फिर दूसरों ने कहा कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत जरूरी होती हैं. These things could not wait for the decision of the council. और ये चीजें ऐसी होती हैं जो मजलिस के फैसले का इंतजार नहीं कर सकती. काउंसिल हियर मीन्स मजलिस, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. इसलिए किसी चीज को करने का मुनासिब वक्त जानने के लिए ये जरूरी है कि हमें मुस्तकबिल में झांकना होगा. और सिर्फ मुस्तकबिल हमें जादूगर ही बता सकते हैं. यानी कि कहीं लोग अमिस मशवर दिवान कि चे हसा पजी ब्रोह कुन इन वोल वक्त युस आस, चे हसा पजी तथ मुतलिक जरूरी सोचुन, चे हसा पजी तम चीज पजन चे मतलब छांडन. मगर और अम खतर हसा हेक न हेल्प करित सिर्फ तुम यम जादूगर आसान छ. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस. और इन चीजों को करने के लिए जो ये राजा है, बादशाह है, इसको जादूगरों के पास जाना होगा. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors.
In their answers to the second question, some people said that the people most necessary to the king were his counselors. दूसरे सवाल के जवाब में कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे जरूरी लोग इसके काउंसिल मेंबरान होते हैं. तो कुछ लोगों ने कहा जो पादरी होते हैं, तो कुछ ने कहा डॉक्टर्स, और एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वेयर द मोस्ट नेसेसरी. और कुछ लोगों ने कहा कि जो सबसे ज़रूरी है इसकी ज़िंदगी में वो ज़्यादा ज़रूरी है जो इसके सरहद पे जो फौजी होते हैं. टू द थर्ड क्वेश्चन सब सेड साइंस. तीसरे सवाल के जवाब में कुछ ने कहा साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग, दूसरों ने जंग को चुना, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ दूसरों ने मजहबी इबादत को ज्यादा अहमियत दी. एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वेर सो डिफरेंट, क्योंकि इसके सवालों के जवाब बहुत अलग अलग थे. द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, बादशाह को तसल्ली नहीं हुई, एंड गेव नो रिवार्ड, और किसी आदमी को भी बादशाह ने इनाम से नहीं नवाजा, क्योंकि जितने भी जवाब इसको मिले वो सारे इसके जो हम कहेंगे इसको मुतमईन नहीं कर सके, इसलिए बादशाह ने इनको खाली हाथ वापस भेज दिया. इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट. इसके बजाय इसने एक सन्यासी की सलाह लेने का फैसला किया जो अपनी अक्लमंदी के लिए सारी इस सल्तनत में मशहूर था. The hermit lived in a wood which he never left. राजा जो ये सन्यासी है ये एक जंगल में रहता था जिसको छोड़ के कभी नहीं जाता था. He saw no one but simple people. आम लोगों के अलावा वो किसी दूसरे से नहीं मिलता था. So the king put on ordinary clothes. इसलिए राजा ने आम कपड़े पहन लिए. Before he reached the hermit's hut, इस सन्यासी की झोपड़ी से तक पहुंचने से पहले किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, इसने अपने घोड़े को छोड़ा विथ हिज बॉडीगार्ड, अपने जो इसको बॉडीगार्ड साथ में था इसने अपने घोड़े को उसी के हवाले किया. एंड वेंट ऑन अलोन, और खुद इस सन्यासी से मिलने के लिए अकेले चला गया. एज द किंग केम नियर द हर्मिट's हट, जब राजा सन्यासी की कुटिया के नजदीक आया, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. उसने सन्यासी को अपनी कुटिया के आगे वाले जमीन की खुदाई करते हुए देखा. He greeted the king and continued digging. उसने राजा का इस्तकबाल किया और खुदाई करना जारी रखा. The hermit was old and weak. जो ये सन्यासी था बूढ़ा आदमी था और कमजोर था. एंड एज ही वर्कड, और जैसे ही ये काम करता था, ही ब्रेथड हेवीली, वो जोर जोर से हाँप रहा था. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.